Hello class 11th. We are discussing chapter 4. We have discussed principles of insurance in our previous video. Now today we will be discussing types of insurance. Okay, and this would be the last topic of this chapter, because after this topic we will finish this chapter, and the further topics which are given in your book like communication or warehousing, these are not there in your course. Okay, so let's start with our topic. I have told you in previous video also that there are two types of insurance. One is life insurance and other one is general insurance. Other than life insurance, all other insurance come under general insurance, whose tenure is of 1 year only. Means after every 1 year they have to be renewed. Okay, means they do not get continue, but life insurance continues for maximum 30 period. Means for lifelong period this life insurance remains, and actually this life insurance is also known as life assurance. Assurance means where money is guaranteed, money will be returned whether this person who has taken life insurance policy is died or not. ठीक है, वो मरता है तो भी जो पॉलिसी का अमाउंट है वो उसके सक्सेसर्स को मिलेगा, और वो नहीं मरता है तो पॉलिसी का अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी only will be given to him only. Okay, so let's start with life insurance. Under life insurance, the amount of insurance is paid on the maturity of policy or the death of policy holder, whichever is earlier. Whether the policy holder dies before the maturity, the amount will be given to his family members, or if he does not die, then he himself will receive the amount. Okay, if policy holder survives till maturity, he enjoys the amount of insurance. If he dies before maturity, then the insurance claims helps in maintenance of his family. And this is the basic aim of taking लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, आदमी यही सोचता है कि अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, तो इसीलिए वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता भी है. द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन एक्सचेंज फॉर अ प्रीमियम विच मे बी पेड इन वन लम्प सम और पीरियोडिकली, से ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली. ठीक है, प्रीमियम वो ईयरली एक साथ भी दे सकता है, ठीक है, वो और या फिर वो पूरी सारी जो प्रीमियम है वो एक ही साथ दे सकता है लमसम अमाउंट में, या वो ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली ऐसे भी दे सकता है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. सो देर आर 5 टाइप्स. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन. First type is whole life insurance policy. Whole life policy, as the name suggests, the sum insured is payable only the death of the assured. Okay, and the premium is payable for a fixed period, means 20 or 30 years for the whole life of the assured. Okay, whole life means suppose he dies after 15 years of paying the premium, then the premium amount will be stopped. His family members need not to pay the remaining premium, and the policy amount will be given to family members. Okay, under this policy the sum insured is not payable earlier than death of the insured. ठीक है, उसकी डेथ से पहले नहीं मिलती है, मीन्स उसकी डेथ के बाद ही उसके फैमिली मेम्बर्स को अमाउंट दी जाती है. द सम बिकम्स पेबल टू द हेयर ऑफ द डिसीज्ड. डिसीज्ड मीन्स जिसकी डेथ हो चुकी है. ठीक है, जो जिस ठीक है, तो वो उसके हेयर मीन्स उसके जो भी वारिस हैं उनको मिल जाती है. ठीक है. सेकेंड टाइप है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. Under this policy, the insurers they undertake to pay the assured to
heirs or nominees a specified amount on the attainment of a particular age or on his death, whichever is earlier. ठीक है, जैसे यहाँ तो ये रूल है कि उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली मेम्बर्स को ही मिलेगी, बट यहाँ पे सपोज अगर जिसने पॉलिसी ली है उसकी डेथ नहीं होती है तो और पॉलिसी की अमाउंट पूरी हो जाती है तो उसमें उसको पेमेंट मिल जाएगा. ठीक है. देन थर्ड टाइप इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी. जॉइंट लाइफ, एज द नेम सजेस्ट, दैट इट इज टेकन by two or more people in the name of two or more people. So it involves the insurance of two or more lives simultaneously. The policy money is payable on the death or any one of lives assured, and the assured sum will be payable to the survivor or survivors. Okay, suppose पेरेंट्स मीन्स हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम की, हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे जॉइंट पॉलिसी लेता है एक हस्बैंड. ठीक है. अब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद वाइफ को मिल जाती है. सपोज इसमें और भी होते हैं जो चिल्ड्रन, ठीक है, 2 बच्चे और भी हैं तो उन तीनों के नाम पे उनको दे दी जाती है. ठीक है. वो सारे सर्वाइवर्स जो भी सर्वाइव करते हैं उनको दे दी जाती है. ओके. इसमें जो प्रीमियम है वो दोनों मिलके पे कर सकते हैं जिन दोनों के नाम पे पॉलिसी है, या कोई भी एक उसमें से पे कर सकता है. देन एन्यूटी पॉलिसी. Now annuity means annual. Okay, so this policy is one under which amount is payable in monthly, quarterly, half yearly or annual installments after the assured attains a certain age. जो assured है कि जिसका नाम है पॉलिसी में वो एक सर्टेन एज वो गेन कर लेता है, उसके बाद में जो पॉलिसी की अमाउंट है वो कैसे मिलेगी. मंथली का ऑप्शन हो सकता है, क्वार्टरली का ऑप्शन हो सकता है, हाफ ईयरली या एनुअल इंस्टॉलमेंट में पॉलिसी की अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाती है. दिस इज़ यूजफुल टू दोज हु प्रेफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज. ठीक है. जो एक सर्टेन एज के बाद जो रेगुलर इनकम चाहते हैं वो एन्यूटी पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं सो दैट दे कैन गेट अ स्पेसिफिक अमाउंट आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज. जैसे पेंशन प्लान होता है सपोज. ओके. वो भी एक तरह से वो एन्यूटी पॉलिसी होता है कि एक बार जो 60 इयर्स और वो उस तरह की जो एज गेन कर लेता है उसके बाद में वो एनुअली या मंथली या क्वार्टरली उनको पॉलिसी की अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाती है. देन लास्ट टाइप इज चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी. सी एंडोमेंट में नॉमिनी को अमाउंट मिल जाता है. ठीक है. अभी जो देखी थी उसमें अब चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी ये चिल्ड्रन के नाम पे ही होती है. दिस पॉलिसी इज़ टेकन फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. ओके. एजुकेशन के पर्पज़ से ये जो ली जाती है. और टू मीट मैरिज एक्सपेंसेस द इंश्योर्स एग्रीज टू पे अ सर्टेन सम व्हेन चिल्ड्रन अटेन अ सर्टेन एज. सो दिस इज़ द अनदर वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ एंडोमेंट पॉलिसी ओनली. ये एंडोमेंट पॉलिसी ही है बट ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि इसको एक फर्दर सब टाइप बना दिया गया है. ओके. नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिसी. फर्स्ट, होल लाइफ पॉलिसी. एग्जांपल्स आर SBI लाइफ शुभ निवेश एंड मैक्स लाइफ होल लाइफ सुपर. देन एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी के टाइप हैं LIC न्यू एंडोमेंट पॉलिसी एंड SBI एंडोमेंट पॉलिसी. जॉइंट लाइफ पॉलिसी के टाइप हैं जीवन साथ प्लस एंड आई प्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म इंश्योरेंस. ओके. एंड एन्यूटी पॉलिसी के एग्जांपल हैं SBI लाइफ एन्यूटी प्लस एंड रिलायंस इमीडिएट एन्यूटी प्लस. चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी के एग्जांपल्स हैं HDFC SL यंगस्टर्स सुपर प्रीमियम एंड एक्साइज लाइफ मेरा आशीर्वाद प्लान. डिस्कस फायर इंश्योरेंस. Fire insurance provides safety against loss from fire. If property of insured gets damaged due to fire, then the insurance company will provide compensation. Okay. The insured gets payment as compensation from insurance company. If no such event happens, the insured will not receive anything.
ठीक है, यहाँ पे यही बात सबसे ज़्यादा मेन है, दे विल रिसीव पेमेंट ओनली व्हेन द इवेंट हैपन्स. इफ नो इवेंट हैपन्स दे वॉन्ट गेट एनीथिंग. फॉर सच सर्विस इंश्योरेंस कंपनी चार्जेस प्रीमियम डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लॉस इंश्योर्ड. जितना भी अमाउंट का लॉस होता है, सपोज 5 लाख की प्रॉपर्टी थी और फायर से जो लॉस हुआ है वो 3 लाख का हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा 5 लाख पे नहीं करेगी, वो केवल 3 लाख ही पे करेगी. ठीक है. Then we have discussed principles in our previous videos, and now we have discussed life insurance also. So one very important thing about life insurance, that principle of indemnity, principle of contribution and principle of subrogation. ये याद रखना, ये MCQ टाइप का क्वेश्चन हो सकता है. प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. All three principles are not applicable to life insurance policy. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पे ये तीनों ही प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं. ठीक है, अब इन तीनों प्रिंसिपल्स को रिकॉल करना, अगर नहीं समझ में आता है तो लास्ट वीडियो वापस देखना, और ये ध्यान रखना दैट ICS, इनके फर्स्ट वर्ड से ध्यान रख लेना दैट प्रिंसिपल ऑफ ICS all three are not applicable on life insurance. Okay. Now again let's discuss the features of fire insurance, that it is a insurance based on the principle of utmost good faith. means दोनों पार्टीज़ के बीच में गुड फेथ होना चाहिए, कोई भी मटीरियल फैक्ट हाइड नहीं करना चाहिए. दैन इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब, अगर इवेंट होता है, मीन्स फायर इंश्योरेंस में जो फायर लगती है तो ही इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी, अदरवाइज नहीं. देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर पर, यानी कि जो प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है उसमें उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए. ओके. देन सब्जेक्ट टू डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा. ओके, ये कॉजा प्रॉक्सिमा है चिल्ड्रन, कॉजा प्रॉक्सिमा. ठीक है, यानी कि प्रॉक्सिमेट कॉज, कि जो भी रीजंस पॉलिसी में लिखे हुए हैं, पॉलिसी में जिनको लिखा हुआ है और डिस्कस किए हुए हैं, उन्हीं रीज़न से अगर लॉस होता है या डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, अदरवाइज नहीं. सो this causa proxima also is applicable here in fire insurance as well as in marine insurance. means जनरल इंश्योरेंस जो जितने भी हैं उन पे सब पे ये सारे ही वो एप्लीकेबल हैं, केवल जो 3 ICS इनको छोड़ के, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन को छोड़ के बाकी जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है 7 प्रिंसिपल हैं, उसमें से ये 3 छूट गए. मीन्स जो 4 बचे हुए प्रिंसिपल हैं वो सारे जनरल इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल होते हैं. एंड इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर. It generally comes to an end at the end of expiry of the year and may be renewed. ठीक है, जनरल इंश्योरेंस सारे 1 ईयर के ही होते हैं, 1 ईयर के बाद उनको रिन्यू करवाने होते हैं. अब जैसे मरीन इंश्योरेंस तो 1 ईयर का भी नहीं होता है. 1 ईयर ये स्पेशली ये जो वोएज होती है ना, जो एक वोएज है कि एक शिप स्टार्ट हुआ सपोज लंदन से, ठीक है, और लंदन से स्टार्ट हुआ और फिर वो पहुंचता है वो इंडिया, तो वो उसमें जितना टाइम लगता है, सपोज 1 मंथ लगता है या 2 मंथ्स लगते हैं, तो वो टाइम पीरियड के लिए वो मरीन इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो एप्लीकेबल रहेगी. ठीक है. ओके. सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ड्यूरिंग सी वॉयज. द बिजनेसमैन कैन गेट हिज शिप इंश्योर्ड बाय पेइंग द प्रीमियम फिक्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. ओके, बाकी जो सेम वही है कि प्रीमियम होता है एक पर्टिकुलर, ओके, एंड जो रिस्क यहाँ पे कवर होती है उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम इंक्रीज होता जाता है. द फंक्शनल प्रिंसिपल्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस आर द सेम एज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है, जनरल प्रिंसिपल जैसे जो फायर इंश्योरेंस के देखे वही प्रिंसिपल्स यहाँ भी एप्लीकेबल होते हैं. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हियर 3 मेन एलिमेंट्स, ओके, 3 एलिमेंट्स are there of this marine insurance. One is cargo insurance, okay, second is hull insurance and third is freight insurance. freight मतलब जहाज का जो भी रेंट होता है. ओके, तो ये 3 मेन एलिमेंट हैं. अब कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है? सी दिस
फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंक्लूड्स कार्गो और द गुड्स, कार्गो होती है जो गुड्स होती हैं शिप में, गुड्स कंटेन इन द शिप एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर्स, ठीक है, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उनका जो सामान है वो सब कार्गो में आता है, ठीक है। तो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में ये जो तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये इंक्लूड होते हैं, और अगर सिर्फ कार्गो इंश्योरेंस ही इसमें इंक्लूड है तो केवल इसी के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। देन हल इंश्योरेंस मीन्स, हल इंश्योरेंस अंडर दिस द होल शिप इज़ इंश्योर्ड, मीन्स केवल कार्गो वाला एलिमेंट ही उस इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है, हल इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, तो फिर क्या होगा, होल शिप इज़ इंश्योर्ड, इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल, वेसल कहते हैं शिप को, एंड इट्स इक्विपमेंट्स लाइक फर्नीचर, फिटिंग्स, टूल्स, मशीनरी, फ्यूल, इंजन, स्टोर्स, ओके एक्सेट्रा। सो जनरली द ओनर ऑफ द शिप अंडरटेक्स हल इंश्योरेंस, जो भी शिप का ओनर होता है वो ही हल इंश्योरेंस लेता है ताकि उसको सारे जो शिप पे जितने भी फर्नीचर, फिटिंग्स, टूल्स, मशीनरी हैं उनसे प्रोटेक्शन मिल जाए अगर वो डैमेज होते हैं तो। अब आता है फ्रेट इंश्योरेंस। सो सच इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट, ठीक है। इन many cases the owner of the goods pays freight only when goods received by him, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज गुड्स डैमेज हो जाती हैं, गुड्स को थोड़ा बहुत भी कुछ डैमेज हो जाता है जो भी माल रखा हुआ है, तो अब शिपिंग कंपनी तो उसका किराया तो लेगी ना, उसका रेंट तो वो लेगी, बट अगर वो गुड्स डैमेज हो गई तो फिर वो शिपिंग कंपनी को फ्रेट नहीं देंगे, है ना। उस केस में क्या होगा, अगर वो फ्रेट इंश्योरेंस का एलिमेंट भी उसमें मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करते हैं तो ये उस रिस्क से उनको सेव करता है और इंश्योरेंस कंपनी वो फ्रेट वो पे करती है, ओके। फ्रेट मीन्स जो रेंट है, किराया है वो, ओके। सो आई होप दिस all three main types of insurance are clear to you now. दिस अदर इंश्योरेंस, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस मेनली हम डिस्कस करेंगे बिकॉज आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे मेडिक्लेम है या जैसे स्टार हेल्थ की जो पॉलिसी होती है। सो इट हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी these days. General insurance companies provide special health insurance policies such as Mediclaim. The insurance company charges a nominal premium every year and in return undertakes to provide up to stipulated amount for the treatment of certain diseases such as heart problem, cancer, etc. Okay, and now this last topic of this chapter, that difference between life, fire and मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। इन तीनों इंश्योरेंस में डिफरेंस तो इसको भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। अब फर्स्ट जो है कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। अब लाइफ इंश्योरेंस पे तो ह्यूमन लाइफ पे ही लिया जाता है, ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट मैटर है ह्यूमन लाइफ। फायर इंश्योरेंस में जो भी एसेट है, प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, गोडाउन है या घर है या जो भी एसेट है उसके ऊपर फायर इंश्योरेंस लिया जाता है। और मरीन इंश्योरेंस शिप, कार्गो और फ्रेट, जो अभी मैंने आपको बताया तीन जो मेन एलिमेंट्स हैं इसके वो, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका ये एलिमेंट है कि प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस इज़ ऑलवेज अंडरस्टूड एज एन इन्वेस्टमेंट रादर देन ओनली इंश्योरेंस बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहाँ पे सपोज डेथ नहीं भी होती है तो भी यहाँ पे जो सम अश्योर्ड है वो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। वो अश्योरेंस होता है उस पर कि वो अश्योर्ड है वो अमाउंट और वो मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स ओनली, एंड अगर वो यहाँ पे इवेंट अगर नहीं होती है तो यहाँ पे पेमेंट भी नहीं होता है। सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ओनली, इट डज नॉट हैव द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके। द नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ ये हमने जब प्रिंसिपल डिस्कस किया था तब भी डिस्कस किया था। सो हियर इट प्रेजेंट्स एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी, ठीक है। जब पॉलिसी ली गई थी उस टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे हमने हस्बैंड वाइफ का लिया था, suppose a husband takes a life insurance policy on his on the name of his wife, okay, and after 1 year they get divorced, then also policy will continue, and if husband pays the premium, okay, husband continue to pay the premium and suppose wife dies, then the policy amount will be given to husband, okay. So in this way this insurable interest present at the time of taking policy, ठीक है। बट हियर इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी एज वेल एज व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। दोनों टाइम पे कि पॉलिसी लेते टाइम पर भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए और जब
इवेंट अकर होती है और उसके बाद में जब क्लेम किया जाता है उस टाइम पे भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। जैसे एक फैक्ट्री ऑनर ने फैक्ट्री पे एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली और वो बीच में ही वो फैक्ट्री को सेल आउट कर देता है, ठीक है। तो अब और जब सेल आउट करी उसके बाद में उसमें आग लग जाती है, तो वहाँ पे पॉलिसी की अमाउंट जो है जो पहले ओनर था उसको नहीं मिलेगी, ठीक है, वो बाद वाले ओनर को मिलेगी। बिकॉज अब ये यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, तभी जाके और पॉलिसी की अमाउंट मिलती है। तो यहाँ पे जो बाद में जो ओनर है उसको मिलेगी, ओके। एंड हियर प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन क्लेम फॉल्स ड्यू मीन्स जब इवेंट अकर होती है, ठीक है, जब डैमेज होता है उस टाइम पे जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका था, मीन्स उस टाइम पे तो जो जैसे सपोज एक सेलर है और सेलर ने गुड्स शिप पे लोड की और उसने बायर को सेंड की। अब जैसे वो लंदन से चला था और वो इंडिया में वो अब पहुंच गया है, तो अब इंडिया में वो पहुंचा उससे पहले वो बायर उससे पहले वहाँ पे जो है वो मरीन पे कोई लॉस वो हो जाता है, ठीक है, रास्ते में डैमेज हो जाता है। तो अब वहाँ पे वो जब क्लेम फॉल्स हुआ है ना, मतलब अब अभी तक वो पहुंची नहीं है गुड्स, वो शिप पे ही हैं, इंडिया पहुंचने से पहले ही वो डैमेज हो जाता है, तब तो वो जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो सेलर को मिलेगा, ठीक है। बट वो इंडिया सपोज पहुंचने के बाद जब गुड्स अनलोड कर रहे थे शिप से और तब वो डैमेज होता है, तब उस केस में जो पॉलिसी की अमाउंट है वो बायर को मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है मेन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है, कि पॉलिसी पर जब डैमेज हुआ तब किसका राइट था, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप क्लियर है। उसके बाद ड्यूरेशन, सो लाइफ इंश्योरेंस यूजुअली एक्सीड्स अ ईयर मोर, ये तो 1 साल से ज़्यादा के लिए ही होती है, बट यहाँ पे इट डज नॉट एक्सीड अ ईयर। एंड मरीन इंश्योरेंस होता है पर्टिकुलरली वो पीरियड ऑफ वॉयज, और मिक्स्ड भी हो सकता है कि और 2-3 वॉयज के लिए वो हो सकता है वो कंटिन्यू हो। Then indemnity, it is not a contract of indemnity, it is a contract of assurance basically, but here strict indemnity, and it is also indemnity means if the incident occurs then only the payment will be given in both marine insurance and fire insurance, ठीक है। Then surrender value, so life insurance policy can be surrendered before its maturity, okay। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो मैच्योरिटी से पहले भी वहाँ वो सरेंडर वैल्यू हो सकती है उसकी, कि जो इंश्योरर है, इंश्योरर कौन हुआ, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी वो अगर वो डेथ नहीं भी होती है तो भी उस पर उसको पेमेंट कर देगी, ओके। और अगर सपोज़ जिसने पॉलिसी ली है और उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी फैमिली मेम्बर्स को वो पेमेंट करेगी। बट यहाँ पे कोई उसकी सरेंडर वैल्यू नहीं है और यहाँ पे भी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर पॉलिसी की टेन्योर ख़त्म हो गया, टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे उस पॉलिसी का बाद में उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे पॉलिसी की अगर टेन्योर पूरा भी हो जाता है तो भी अश्योर्ड होता है, पेमेंट अश्योरेंस है ना, पेमेंट अश्योर्ड है। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में सरेंडर वैल्यू होती है पॉलिसी की, ठीक है, और बाकियों में नहीं होती। Then medical examination, here medical examination of the insured is necessary, insured और assured भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे necessary है बट यहाँ पे necessary नहीं है। Then utmost good faith, तो utmost good faith का जो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है वो तीनों ही इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल है। एंड यहाँ पे लॉस मेजर, यहाँ पे लाइफ का जो लॉस है वो मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। मीन्स सपोज़ किसी ने अगर 15 लाख की पॉलिसी ली है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ की वैल्यू 15 लाख है और किसी ने 1 करोड़ की ली है तो मीन्स उसकी लाइफ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसकी लाइफ की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लाइफ को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी के अमाउंट को मनी में मेजर किया जा सकता है और यहाँ पे भी मनी में मेजर कर सकते हैं, ओके। सो here our chapter ends, and this next topic, modes of communication, is not there in your course, okay। So here we end our chapter. We will discuss some case studies in our next video. Till then, goodbye, thank you. You can tell your problems through your comments also, okay। God bless you children.